As you know, today we have a webinar at 5 in place of 4 on MSME, and on this subject we engage our CS Devesh Goyal ji, but due to sudden some mishappening, Devesh Goyal ji is not available to us today. So on his request or on my request, Richa Sharma ji at the 11th hour and Deepak Arya ji accepted our invitation to carry on the webinar on the same subject. Richa Sharma ji will speak first on the benefits to MSME in Atmanirbhar Yojana, and after that Deepak Arya ji will speak on the definitions, process of registration and other things, benefits also. So I'm sorry that our Divesh Goyal ji is not available due to sudden his aunt expired. So I am once again sorry, and I welcome our both the speaker. The brief introduction of Richa Sharma ji is like this. Richa Sharma ji is a partner in the full-size law firm by the name of Conducive Legal LLP, heading their corporate legal secretarial and licensing wing. By qualification, Richa ji is a CS, company secretary, and LLB with close to 11 years of post-qualification experience. Professionally, Richa ji has been associated with big corporate houses, including Godrej and Sriram Group, with respect to consultancy and litigation mandates. Having said that, Richa ji has closely worked with the startups for compliance in relation to foreign investment and setting up their process. Besides work, Richaji loves to deliver sessions on motivation and compliance, and she has been a visiting faculty at ICSI. Richa delivered good number of sessions at ICSI or corporate laws and also as a motivational speaker. This is the brief introduction of our learned speaker Richa Sharma. And with this thank, I once again welcome both the speaker and over to Richa Sharma. First of all, I would like to thank you, Rajesh ji, for inviting me. And secondly, as there was a demise of Devesh aunt, so may her soul rest in peace. And as far as I know, Devesh is a regular faculty in your you can say study circle, but I hope I won't disappoint you being a new speaker to your study circle, and I hope I'll be the regular one from now on. Don't worry about it. Sure, Right, madam, sir. sure. So, so today we would like to uh, Ma'am, your voice is very low. Please speak loudly. okay, is it better now? Slightly more, slightly more. Just a second. आप उसकी जरा एडजस्टमेंट कीजिए, थोड़ा पास में ले लीजिएगा उसको, आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं जो भी. Sir, already I'm using a hand free, so I believe this is good. If you say Okay, I'll now it's okay. Now it's okay. Now it's okay. sign, okay. So as you all know, because nowadays after the introduction of this new package, खाली प्रोफेशनल्स में ही नहीं, बहुत सारे बाकी लोगों में, जनरल पब्लिक में भी बहुत ज्यादा आप कह लीजिए उत्साह, बिकॉज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ दिस कोविड-19 गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशंस लेके आई थी, जिसमें उन्होंने मतलब यहाँ तक किया था कि अगर आप लोगों को पीछे ध्यान हो तो एम्प्लॉइज को सेफगार्ड करने के लिए दे हैव इशूड अ सर्कुलर, एमएचए हैज इशूड अ सर्कुलर, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ना तो एम्प्लॉइज की सैलरी काटिएगा और ना ही उन्हें आप जॉब से निकाल सकते. बट इसके बाद जो कंपनीज थी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस सिचुएशन आ गई. और उस डिस्ट्रेस सिचुएशन का कारण क्या था? अकॉर्डिंग टू दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या ये कह लीजिए जो उनके यूनियंस हैं या बाकी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा कि लॉकडाउन जो है वो केवल एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, वो तो कंपनीज के लिए है. इससे हमारे जो लॉसेस हैं, ठीक है एम्प्लॉइज को सफर करना पड़ रहा है, बट जो हमारे अपने लॉसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. और जहां तक आप बात करते हैं कि एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाए या बाकी सारी चीजें, तो वो सैलरी अगर हम पे ऑफ करना भी चाहें तो कैसे करें, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स विद अस और सफिशिएंट फंड्स विद अस.
तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप लोगों ने अभी पीछे कुछ न्यूज़ेस में भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कोर्ट के पास गई कि ये जो एमएचए का ऑर्डर है ये जो है ये डिफेक्टिव है, आप इस लोगों को रिडेंडेंट डिक्लेयर कर दीजिए। उनका पॉइंट भी वैलिड था। तो जस्ट टू गिव अ रिलीफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया, एक रिलीफ पैकेज, एक 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज जो कि फाइट अगेंस्ट कोरोना की तरह उन्होंने लॉन्च किया। और उसका जो फर्स्ट फेज था, उस फर्स्ट फेज में उन्होंने जो बेनिफिट्स दिए वो एमएसएमई को दिए। तो उनके इस अनाउंसमेंट के बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, वो बेसिकली लेके आई इस पैकेज को और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इस जो पैकेज है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, व्हाट डज दिस मीन? ये कंपनीज को, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं या एमएसएमई सेक्टर है जहां पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सरवाइव कैसे करें जब 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं चीजों को लॉकडाउन हुए हुए, बिजनेसेस बिल्कुल ठप पड़ गए हैं, तो उस सिचुएशन में वो सर्वाइवल कैसे करें? तो उस सर्वाइवल के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आत्मनिर्भर के अंडर फर्स्ट डे जो इनका अनाउंसमेंट था उसमें एमएसएमई के लिए 6 बेनिफिट अनाउंस किए। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट था वो था कि 3 लाख करोड़ का एक कोलेटरल लोन इन्होंने दिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दूसरा इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया वो 20,000 करोड़ का एक सबॉर्डिनेट डेट अनाउंस किया, स्ट्रेस्ड या फिर जो आपकी एनपीए एमएसएमईज है उनके लिए। इसी के साथ तीसरे अनाउंसमेंट में इन्होंने 50,000 करोड़ की जो वर्थ है उसकी इक्विटी इंफ्यूज करने के लिए एमएसएमई में कहा। और यहाँ तक जो डेफिनेशन है आपकी एमएसएमई की उसे भी ब्रॉडन कर दिया गया, उसे भी चेंज कर दिया गया। और क्योंकि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट ऑलरेडी चल रहा था, डिस्ट्रेस ऑलरेडी है, और बहुत सारी चीजें आजकल आपको सुनने में आ ही रही होंगी कि हम लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें बाइकआउट करना चाहिए, तो उसी की तर्ज पे गवर्नमेंट ने भी 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट जो टेंडर हैं, उन्हें ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ कर दिया। यानी केवल और केवल अब जो इंडियन एंटिटीज हैं वो ही इन टेंडर्स को फिल कर सकती हैं या उन्हें ही ये टेंडर मिलेगा। और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, एमएसएमई का जो एक बहुत बेसिक फायदा था जो पहले से भी था, इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट एंटिटीज और आपकी जो सीपीएसईज है वो एक्सम्प्टेड थी। इसके साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ आत्मनिर्भर भारत वाली उन्होंने उसे भी कहा कि कोई भी एमएसएमई अगर आपकी वेंडर है तो आपको उसकी पेमेंट देनी ही देगी। तो इसमें बेसिकली है क्या कि सबसे पहले तो जो इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। अगर हम एमएसएमई की डेफिनेशन की बात करें तो वो इन्होंने ब्रॉड कर दी। अगर हम देखें माइक्रो के केस में जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए डेफिनेशन है, पहले क्या होता था, डेफिनेशन केवल और केवल इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती थी कि आपकी कंपनी या फर्म में अगर इन्वेस्टमेंट इतनी है, सपोजिंगली अगर हम माइक्रो की बात करें 25 लाख तक की या उससे नीचे की इन्वेस्टमेंट है, देन यू विल बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो कंपनी। बट ये जो नई डेफिनेशन आई, इन्होंने इसके साथ साथ उसमें टर्नओवर को भी ऐड कर दिया। फॉर इंस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रो एंटरप्राइजेस, in this case what they have done is, माइक्रो के केस में जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। और इनफैक्ट इसमें जो डेफिनेशन में जो सबसे मेजर चेंज आया वो ये था कि पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला या पुराने एक्ट का जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में क्या होता था, इन्वेस्टमेंट जो बेसिस है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग होता था। मैन्युफैक्चरिंग को इन्वेस्टमेंट बेस थोड़ा ज्यादा दिया जाता था, ये मान के कि शायद प्लांट एंड मशीनरी या बाकी चीजों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और प्लस में जो आपकी सर्विस एंटिटी है, दोनों के लिए उन्हें सेम कर दिया। आज की तारीख में जो क्राइटेरिया है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का, वो सेम है दोनों के लिए। अब हम आते हैं इन्होंने चेंज क्या किया। बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग में और 10 लाख की सर्विसेज में माइक्रो के केस में,
उसे बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की। इट इज अ रियल गुड मूव कि पहली चीज तो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दिया गया, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है आज की तारीख में। बिकॉज इवन इफ अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज होता है, आइदर ड्यू टू मार्केटिंग, क्योंकि खाली मशीनरी, बिकॉज आज की तारीख में वो समय नहीं रह गया कि खाली मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और भी बहुत सारी जगहों पे होती है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो 25 और 10 लाख था उसे बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो एडिशन किया वो ये किया कि जो टर्नओवर है उसे भी ऐड कर दिया। अगर हम बात करें माइक्रो की, तो उसके केस में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया। ऐसे ही स्मॉल की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट होता था और सर्विसेज में 2 करोड़, उसे बढ़ा के अब इन्होंने स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, यानी इफ यू वांट टू क्वालिफाई एज अ स्मॉल एंटरप्राइज, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो है 10 करोड़ से कम, और जो टर्नओवर क्राइटेरिया है दैट इज लेस देन 50 करोड़। ऑल्दो आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वी हैव डन लॉट्स ऑफ R&D इन दिस। और अगर इसी तरह हम मीडियम की बात करें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बढ़ा दिया। बट इसमें जो मेरी समझ है, हो सकता है आपकी मेरे से थोड़ी डिफरेंट हो, और अगर राजेश जी परमिट करेंगे तो इस सेशन को हम लोग थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे, रादर देन आई कीप ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर एंड वी गो अवे। विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स। अगर थोड़ा सा इसमें हम प्रैक्टिकली, जो कि हम लोगों के फेस टू फेस सेमिनार्स में होता है, व्हाई डोंट वी ट्राई दैट इन वर्चुअल सेशन। So I request all the members whosoever are attending this seminar, participant levels बहुत ज्यादा है, 154 है। Very congratulations to you sir for that। और जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, let's just do a interactive session। ऐसा नहीं करते कि मैंने सेशन दिया, एंड में जय माता दी बोले और CPR लगाए और चल रही है। लेट्स जस्ट मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है, वीडियो मोड है, हम लोगों के लिए नया है, हम लोगों के लिए पहली बार है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट चैटिंग अलोंग विद दिस सेशन, ताकि हम इंटरैक्ट कर पाए। अब जहां तक मैं ये आपके इन्वेस्टमेंट या डेफिनेशन की बात कर रही थी, इसमें मैं आप लोगों का व्यू जरूर लेना चाहूंगी, प्लीज अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इसमें मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने जब पैकेज लॉन्च किया तो उनका बेसिक क्राइटेरिया था कि ज्यादा से ज्यादा MSMEs को लेके आया जा सके, ज्यादा से ज्यादा MSMEs को केटर किया जा सके, बेनिफिट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जिसपे बहुत सारे, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था अगले दिन बहुत सारे ट्विटर भी ट्रेंड हुए थे और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है इसके बीच में एंड है या और है। इस पे बहुत क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, क्योंकि डेफिनेशन सेज इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो पहले इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके माइक्रो या स्मॉल या मीडियम में कवर हो रही थी, लेकिन अब वो टर्नओवर की वजह से उससे बाहर निकल गई। तो जो ये डेफिनेशन बनाई गई, बहुत सारी एंटिटीज इसमें कवर भी हो गई, बिकॉज 25 लाख से अगर मैं माइक्रो की बात करूं 1 करोड़ पे आना इज अ ह्यूज थिंग। बट वहीं अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि टर्नओवर कंपनीज का बहुत ज्यादा होता है, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपको इसका ज्यादा पता है। तो वो सारे जो बेनिफिट्स उन्हें मिलने चाहिए थे या मिल सकते थे, या जो एक लार्जर ग्रुप केटर हो सकता था, वो इसमें अब नहीं हो पाएगा। तो इसमें आई वुड रिक्वेस्ट, आई डोंट नो राजेश जी, ऑन टू यू, कि क्या इसमें हम लोगों के चैट सेशन ऑन है सारे मेंबर्स के लिए सर? यस यस, ऑल आर ऑन। हाँ, तो एटलीस्ट अगर आप लोग किसी का भी, इफ यू फील लाइक कमिंग इन बिटवीन और इवन the chat is on, your question on the chat. Good afternoon. राइट सर, हाउ आर यू कोहली साहब? Good, very good. और थोड़ा अपना फेस कर पूरा ऊपर. People are complaining we can't see your beautiful face. मैं कहनी मेरा ट्रेनिंग is very smart and very bold. Don't you worry. Thank you, sir. So let's just come to the chat box and we will chat with each other on the later stage, sir. तो जहां तक if I just open up my chat box, तो इसमें मतलब डेफिनेशन में मेरे हिसाब से इट शुड बी और रादर देन इट इज एंड आने से क्या हुआ, वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक लिमिटेशन से बांध दी गई
अगर ये और होता तो शायद बहुत सारी एंटिटीज इसमें कवर हो जाती है, या तो आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो, नहीं तो आपका टर्नओवर इतना हो. दिस इज माय पर्सनल व्यू. अब इसमें वी हैव गॉट सम रिप्लाई फ्रॉम उज्जवल. आई बिलीव एवरीवन इज एबल टू सी दिस. ट्रेडिंग कंसर्न आएगी नहीं आएगी, या किसे केटर करेंगे या किसे नहीं करेंगे, ये मैं आपको पूरे 5 मिनट बाद बताऊंगी. लेट मी जस्ट कवर दिस फर्स्ट. इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बोथ क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड. आई डू अग्री. मैं जो अभी की डेफिनेशन है उससे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ना ही इसमें कोई कंफ्यूजन है कि इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं, मतलब एंड आएगा या नहीं आए, एंड है या और है, एंड है. बट एज पर माई परस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था, बिकॉज आज की तारीख में आप देखिए कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसके बाद उसमें जो चीजें हैं जितना वो रिलीफ देना चाह रहे हैं वो एंड की वजह से नहीं है. तो ये मेरा टेक है यहाँ से. अगर मतलब जैसे हम लोग हैं या बाकी प्रोफेशनल्स हैं, वी कैन टॉक टू मिनिस्ट्री कि इसमें आप लोग थोड़ा सा अमेंडमेंट ला के दीजिए. इसके बाद हम लोग आगे जो आत्मनिर्भर वाला पैकेज है, बिकॉज जिस दिन से ये पैकेज अनाउंस हुआ, मोदी जी ने कहा कि मैं आप लोगों को 20 लाख करोड़ का रिलीफ दे रहा हूं, उस दिन सबके कान खड़े हो गए. Everyone want to know, everyone want to understand कि हमारे हिस्से क्या आया है. उसके बाद जब दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंसमेंट आया और उसमें ये कहा गया कि जी ये 20 लाख करोड़ जो हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, और जो पहला ट्रेंच है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज रेज्ड थे एम्प्लॉयर्स की तरफ से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहला जो बेनिफिट मिला वो मिला एमएसएमई को. बिकॉज ऑलरेडी कोर्ट में केसेस जांच रहे थे, चीजें जा रही थी, एम्प्लॉयर्स में डिस्ट्रेस था, एमएचए की गाइडलाइंस सबको चैलेंज किया जा चुका था. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वेज कोर्ट के साथ आप कह सकते हैं रिलेट कर करके चैलेंज किया जा चुका था कि वेज कोड सुपरसीड करेगा या डिजास्टर मैनेजमेंट सुपरसीड करेगा या क्या सुपरसीड करेगा. दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, वी विल कम बैक टू लेटर. तो इसीलिए जो सबसे पहला बेनिफिट इन लोगों ने दिया वो दिया एमएसएमई को, एमएसएमई सेक्टर को. बिकॉज जो लार्ज कॉर्पोरेट्स थे, आपने देखा होगा जहां पे एक तरफ आपने न्यूज सुनी होगी कि स्विगी ने आज ले ऑफ कर दिया और किसी और कंपनी ने पे कट कर दिया, वहीं पे अगर आप बिग कॉर्पोरेट्स की बात करें तो बहुत सारे बिग कॉर्पोरेट्स ऐसे थे जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम पैसे ज्यादा देंगे या फिर टाइमली देंगे. तो बेसिकली इसीलिए इन्होंने एमएसएमई को इसमें केटर किया, ये मेरी समझ है. अब हम आते हैं इसके दूसरी लेग पे. बेसिकली है क्या, एमएसएमई ऑलरेडी एक बेनिफिटेड काइंड ऑफ एंटिटी थी. तो आत्मनिर्भर वाले पैकेज पे जाने से पहले, बिकॉज जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहला सवाल ये आया कि क्या मैं आज एमएसएमई में रजिस्टर करा लूं, क्या मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज सारी एंटिटी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं थी. तो जो अभी एग्जिस्टिंग बेनिफिट है, एक छोटा सा, ऑल्दो 90% लोगों को ये पता होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर अ रिवीजन हम लोग एक बार देख लेते हैं. इसमें जो कुछ मेजर जो बेनिफिट अवेलेबल थे वो था कि कोलेटरल फ्री लोन्स ऑलरेडी अवेलेबल थे. इसके साथ साथ जो पेटेंट पे सब्सिडी है वो 50% ऑलरेडी एमएसएमई को मिलती है. और इसके साथ ही आपका जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है वो भी आपका. ओके, पीपल हैव अ क्वेश्चन इन बिटवीन कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सर्विस इंडस्ट्री की क्या होगी. जस्ट अलाउ मी सम टाइम, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. और 90% क्वेश्चन आपके ड्यूरिंग दिस सेशन खत्म होने तक खत्म हो जाएंगे. तो जस्ट वेट फॉर योर क्वेश्चन फॉर अ वाइल. जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो जो इसमें सबसे मेजर बेनिफिट था, एक तो था पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे, और दूसरा अगर आपने एक सुना होगा तो जो इनक्यूबेटर फंड मिलता था किसी स्टार्टअप को एक इनोवेटिव आइडिया के लिए, अप टू 75 to 80%. incubation fund was the most lucrative thing if you are a MSME, if you have a innovative idea. because आज की तारीख में जो स्टार्टअप्स हैं वो केवल और केवल ये जो फंडिंग से आपकी इसके ऊपर चल रहे हैं, तो इंक्यूबेशन वाला जो इसमें पॉइंट था, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम आते हैं कि ये तो हुआ एग्जिस्टिंग बेनिफिट की बात. इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे आत्मनिर्भर भारत में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसमें जो सबसे पहला है आपका है कोलेटरल फ्री लोन थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर बिजनेसेस.
कोलेटरल फ्री लोन। ये लोन इन्होंने ये कहा कि आप बैंक के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, बेसिकली कोलेटरल फ्री लोन जब कहा गया तो सबको ये लगा कि आप बैंक के पास जाइए और आपको लोन मिल जाएगा। ऑल्दो सबने ये कहा ये कोलेटरल फ्री लोन है, मेरा टेक इसमें फिर से अलग है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंक मोर एनालिटिकल रादर देन थ्योरेटिकल। नोटिफिकेशन हम सबने पढ़ ली है, हम सबको टिप्स पे है, उसे रीड आउट करना या उसे बताना आई डोंट थिंक विल बी बेनिफिटेड। तो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस अक्रॉस, क्योंकि कोई चीज ऐसे हो सकती है कि मेरा एनालिसिस ठीक हो या कोई चीज ऐसी हो सकती है जो मैं आज आपसे सीख के जाऊं। तो जहां तक इस कोलेटरल फ्री लोन की बात करते हैं हम, तो इन्होंने ये बोला कि हम आपको कोलेटरल फ्री लोन देंगे जिसका नाम इन्होंने रखा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस एंड एमएसएमई। इसमें इन्होंने कंडीशन रखी, जैसे हर चीज की कंडीशन होती है, म्यूचुअल फंड के नीचे बारीक बारीक लिखा होता है, इसके पास में लिखा था कंडीशन अप्लाइड। वो कंडीशन अप्लाइड क्या था? सबसे पहली कंडीशन इसमें ये थी कि 29 फरवरी 2020 को जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उसका केवल और केवल 20% तक का ही लोन आपको मिलेगा, उससे ज्यादा का लोन हम आपको नहीं देंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो आपकी बोरोइंग है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जिसपे हम आपको 20% देने जा रहे हैं, वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो तो माल्या और नीरव मोदी तुरंत आके कहेंगे कि पहले तो 20 करोड़ हमें दो, बाकी तो हम बाद में देखेंगे। ऑल्दो ठीक है, कुछ ना कुछ कंपनी तो वो भी एमएसएमई में अपनी ले ही आएंगे। एनीवे, उसके बाद जो इसका बात करें लोन की रीपेमेंट की, बिकॉज होता क्या है इसमें, जो सबसे अच्छी बात है इस स्कीम की वो ये है कि इसमें स्पेसिफिक किया गया कि दिस इज अंडर ऑटोमेटिक रूट। 90% स्कीम्स सरकार से अनाउंस की जाती हैं, लेकिन वो कभी भी बेनिफिटेड नहीं हो पाती, या जिस लेवल पे अनाउंस की जाती हैं उस लेवल तक उसका बेनिफिट जो है वो मिल नहीं पाता जो आपका एंड यूजर होता है उसे। आप आज भी बात अगर करें, जो हमने अभी पहले बेनिफिट्स डिस्कस किए थे एमएसएमई के, उसमें 90% लोग ये कहेंगे कि आप मुद्रा लोन लेके बात कर लीजिए या किसी भी लोन की कह लीजिए, वो ऐसे जाके मिलता नहीं है। तो इसीलिए कॉन्शियसली गवर्नमेंट ने इसे ऑटोमेटिक रूट में रखा है। ऑटोमेटिक रूट है क्या? ऐसा नहीं है कि आपने सोचा जी ऑटोमेटिक रूट में है, आप बस क्रेडिट अवेल करते हैं या कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा। ईज है इसमें। बेसिकली इन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लिमिट है, अगर आप बैंक के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट करते हो तो दे डोंट हैव एन राइट टू से नो टू यू। दे डोंट हैव अ राइट टू से कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो 10% की है जी। दे डोंट हैव अ राइट टू से कि नहीं जी हम आपको इतना लोन नहीं देंगे। दूसरी चीज, इन्होंने इसमें एक चीज और बहुत शानदार करी, इन्होंने इसकी जो रीपेमेंट है उसे भी डिफाइन कर दिया कि इसकी रीपेमेंट आप कैसे कीजिए। बैंक के ऊपर नहीं छोड़ा कि रीपेमेंट, बिकॉज हर लोन की अलग होती है, आपके एग्जिस्टिंग जो लोन चल रहा होगा बैंक के साथ उसकी भी रीपेमेंट कंडीशन टर्म्स सारी अलग होंगी। तो इसमें जो रीपेमेंट साइकिल है वो एक सबसे बड़ा कैच है, और दूसरा इसका इंटरेस्ट रेट। अगर मैं बात करूं रीपेमेंट की, तो ये लोन आपको 4 साल में रीपे करना है, लेकिन उस 4 साल में इन्होंने 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया है, दैट टू ऑन प्रिंसिपल। अगेन आई एम टेलिंग दिस, दैट टू ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल तक रीपे नहीं करना, इंटरेस्ट यू हैव टू पे, और 4 साल में आपको इसकी रीपेमेंट करनी होगी। अब जहां तक बात है इंटरेस्ट रेट की, वो इंटरेस्ट रेट इन्होंने ऑल्दो जो अभी तक है कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जो ड्राफ्ट भेजे गए हैं या ड्राफ्ट सजेशंस भेजे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी समवेयर अराउंड मैक्सिमम अप टू 9.5%। और इसमें अगर मैं बात करूं आपके बाकी चीजों की, तो इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ अगर हम बात करें रीपेमेंट की या बाकी चीजों की, तो रीपेमेंट इसका 4 साल का है, इंटरेस्ट इसका 9.5 तक हो सकता है। ये ड्राफ्ट है, जो आएगा वो गाइडलाइंस में आ जाएगा। इसमें एक जो और एडिशनल चीज है वो ये है कि इसमें कैप्ड है इंटरेस्ट रेट, यानी दिस इज नॉट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, कैप्ड है, उससे ऊपर नहीं ले सकते। दे विल चार्ज ओनली दैट मच ऑफ अमाउंट। अब इसमें एक और जो एडिशनल बेनिफिट है वो है कि इसमें कोई भी गारंटी फीस या कोलेटरल आपको नहीं देनी होगी।
चैट बॉक्स में भी बहुत सारे चैट मैसेजेस आए हैं। Richa, you please continue to take it later. सॉरी सर, You please continue to take all the things later because otherwise you will not. श्योरली। ओके, तो इफ आई गो ऑन विद दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रीपेमेंट और बाकी सारी चीजें फिक्स कर दी गई हैं, उसके साथ साथ अब इसमें आते हैं मेरे पर्सपेक्टिव पे। ये तो हुआ सरकार ने क्या कहा। सरकार ने आपको आके कहा कि हम आपको कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं। आप में से कितने लोगों को यह फील है कि ये लोन कोलेटरल फ्री है? एटलीस्ट मुझे तो नहीं, बिकॉज ये जो लोन आपको मिल रहा है ये आपको आपकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट लाइन पे मिल रहा है। वो क्रेडिट लाइन जो ऑलरेडी आप किसी कोलेटरल को रख के ली हुई है आपने। कोलेटरल तो बैंक के पास ऑलरेडी है, जो आपकी एग्जिस्टिंग कोलेटरल है उस पे जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उस पे बस एक एक्स्ट्रा 20% मार्जिन आपको दिया जा रहा है, 20% का एक एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जा रहा है। तो ये कोलेटरल फ्री कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आया। इस पे मैं आप लोगों के व्यूज एक बार जरूर लेना चाहूंगी। दूसरी चीज, अगर इसे ये थोड़ा सा टिल्ट कर देते कि नो फ्रेश कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, तो शायद मेरे जैसे मंदबुद्धि लोगों को ज्यादा समझ में आ जाता। बट अभी तो मेरी समझ से बाहर है कि ये लोन कोलेटरल फ्री कैसे है। और एक इसमें कैच जो मुझे मतलब मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मुझे समझ में आया, ये कहते हैं कि हम आपको आपकी आउटस्टैंडिंग का 20% देंगे। मैंने 100 करोड़ का, या ये कह लीजिए 100 करोड़ का नहीं, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग ही 25 करोड़ की, 10 करोड़ का लोन लिया। मैं उसका 5 करोड़ ऑलरेडी पे कर चुकी, या उसका 6 करोड़ पे कर चुकी। मेरी आज आउटस्टैंडिंग 4 करोड़ है। आप मुझे उसका 20% देना चाहते हो। अगर मैं बैंकर के पास नॉर्मल कोर्स में जाऊं तो कोलेटरल तो मेरी बैंक के पास ऑलरेडी है। तो मेरे हिसाब से लिमिटेड फाइनेंस की नॉलेज के साथ मुझे तो आज उसका ज्यादा लोन मिल जाना चाहिए। तो मैं आत्मनिर्भर भारत या जो हमारी एमएसएमई है उसे कैसे आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, ये भी अगेन थोड़ा सा मतलब मेरे एनालिसिस या मेरी समझ में नहीं आया। बिकॉज कोलेटरल आपकी ऑलरेडी है, इसीलिए जब भी अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब भी आप इसे किसी को भी सजेस्ट करना चाहें या खुद भी एनालाइज करना चाहें, तो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग कोलेटरल है उसकी वैल्यू के साथ ये तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको एग्जिस्टिंगली कहीं उससे बहुत ज्यादा पैसे या रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज आज की तारीख में हर इंसान, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर हमें लॉसेज हुए हैं तो हर इंडस्ट्री एक नेगोशिएटिंग टर्म्स पे है। तो हो सकता है आप अपनी नेगोशिएशन स्किल से उनसे शायद कुछ ज्यादा बेटर लेके आ सकें। ये तो हुआ हमारा जो पहला रिलीफ कोलेटरल फ्री लोन अंडर ऑटोमेटिक रूट का था। उसमें ऑटोमेटिक रूट इज अ रियल गुड इनिशिएटिव, no second thought about that, because for this banker cannot say no to you. Now let's just come down to our second announcement which has been made. ये भी एक अलग से और बहुत मतलब इसे तो एटलीस्ट आई अप्रिशिएट, ये जो अनाउंसमेंट आई है सबऑर्डिनेट डेट टू स्ट्रेस्ड एंड एनपीए एमएसएमई। बिकॉज आज की तारीख में अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी एनपीए अकाउंट को लोन्स नहीं मिलते। उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर वो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट, वो भी अगर वो स्टार्टअप है और वो उसे मतलब अपने आप को इतना अच्छा प्रोजेक्ट कर पाए। अगर मैं जनरल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करूं तो वो भी उसे भी वेंचर कैपिटलिस्ट या सीड फंड या आपका ये सारे फंड समझ में नहीं आते, पता भी नहीं होते। समझने की तो बात छोड़िए, पता भी नहीं होते। तो उन केसेस में अगर मैं बात करूं तो ये जो एक मूव है सबऑर्डिनेट डेट टू स्ट्रेस्ड एमएसएमई, ये एक बहुत बढ़िया मूव है। इसमें इन्होंने ये कहा कि हम एक 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट देंगे एमएसएमई, लेकिन ये केवल और केवल या तो स्ट्रेस जो है या एनपीए जो है उन्हें मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बिकॉज ये मतलब जस्ट इन अ सेशन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, 90% एमएस अगर एनपीए अकाउंट की मैं बात करूं, आप भी जब बैंक ऑडिट करते होंगे तो आपको पता है कि एनपीए अकाउंट को पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। सरकार भी मान के चलती है एनपीए अकाउंट को पैसा दिया तो वापस नहीं आएगा। इसीलिए अगेन ये मेरा एनालिसिस है, आपके व्यूज इससे अलग हो सकते हैं। इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट दिया 4,000 करोड़ का,
कि अगर पैसे डूब भी जाते हैं तो हम बैंक को सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क बैंक के पास भी है, एक बड़ा एक्सपोजर बैंक के पास भी है रिस्क का, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी 4,000 करोड़ का सपोर्ट दिया। बिकॉज एनपी और स्ट्रेस एमएसएमई को अगर आप पैसा देते हैं तो रिकवरी के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से कम हो जाते हैं। अब इसका दूसरा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली जो स्कीम है ये मुझे बड़ी ल्यूक्रेटिव सी लगी और बड़ी समझ में भी आई कि हाँ जी ये इन्होंने बड़ा अच्छा सा किया कि चलो अब जो एनपीए वाले हैं, बिकॉज होता क्या है जो एमएसएमई सेक्टर होता है उसमें पैसा कैसे आता है, आप बिजनेस फंडिंग कैसे करोगे, फाइनेंस कैसे करोगे। अगर मैं इसमें स्टार्टअप को बिल्कुल छोड़ रही हूँ बिकॉज बहुत मॉडर्न फाइनेंसिंग अवेलेबल है, वो अगर मैं छोड़ दूं तो जो ट्रेडिशनल फंडिंग है जो कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है वो कैसे करेगा, अपने पैसे लगाएगा, रिश्तेदारों से मांग लाएगा, बहुत ज्यादा सब कुछ हो जाएगा तो बैंक से मांग लाएगा, और अगर वो भी नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन बनता है जी एनबीएफसी से ले लेंगे एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो इक्विटी इन्फ्यूजन होता है प्रमोटर का वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये वाला जो फंड इन्होंने बोला, बिकॉज इसका नाम है सबऑर्डिनेट डेट, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट डेट टू योर कंपनी, ऑल्दो ये कंपनी को डेट मिल रही है, लेकिन दिस इज एज अ इक्विटी इन्फ्यूजन, ये आपको जो दी जाएगी आप इसे एज अ इक्विटी अपनी कंपनी में इन्फ्यूज कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला फायदा जो मुझे समझ में आया वो ये है कि फ्यूचर के लिए भी जब भी आप कहीं पे भी अपना सीएमए डाटा लेके जाएंगे या कहीं पे भी आप किसी इन्वेस्टर को पिच करना चाहेंगे तो वो सबसे पहली चीज ये देखता है कि हाउ मच इक्विटी यू हैव इन्फ्यूज्ड इन योर बिजनेस। मुझे आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाने हैं तो आपने कहीं उसमें 5,000 तो नहीं लगाए, एटलीस्ट आपका जो वो कहते हैं ना इक्विटी डेट रेशियो वो भी एक तरह से इसमें काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज अगेन अ गुड मूव। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है या जो ये कह लीजिए इसका जो थर्ड है, इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई। इन्होंने इसमें क्या कहा, इन्होंने ये कहा अब तक तो जी हो गई बात उसकी जिसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जरूरत थी, जिसे पैसों की जरूरत थी, या एनपीए जो बिल्कुल डूबे हुए थे उन्हें पैसे दे देते हैं। अब हम आते हैं उन पे, उन एमएसएमई पे जो अच्छा खासा चल रही है या जो एक अच्छी परफॉर्मर है, गुड परफॉर्मर जो एमएसएमई है उनको, उन्हें इन्होंने ये कहा कि हम एक फंड्स ऑफ फंड्स करके कॉर्पस बनाएंगे 5,000 करोड़ का, जिसमें हम फंडिंग देंगे, इक्विटी फंडिंग। अगेन इसमें इन्होंने फिर से इक्विटी फंडिंग की बात करी है। उन एमएसएमई को ये दिया जाएगा जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो। अगर आपकी एमएसएमई में ग्रोथ पोटेंशियल है तो ताकि आप अपनी जो एमएसएमई है उसे फ्यूचर में लिस्ट करा सकें। ऑल्दो ये इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन आज की तारीख में मुझे अगेन इसमें थोड़ा सा ये हिच था, आज की तारीख में क्या कोई एमएसएमई आईपीओ लाने की स्थिति में है, इवन एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में? और अगर वो आईपीओ ले भी आते हैं तो क्या वो आईपीओ सक्सेसफुल होगा? तो शायद इस वाले फंड को अगेन कहीं और किसी और तरीके से मेरे हिसाब से एक बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता था, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बहुत खराब है। इस टाइम पे अगर आप, सरकार हमारी आईपीओ को फंड करना चाहती है कि हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बढ़ सके और आप आईपीओ टाइप चीजें ला सके, ऑल्दो इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको आईपीओ लाना है, बट स्टिल इसको एक और ज्यादा अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग दी जा सकती है। अब हम आते हैं इस पे नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बेनिफिट दिया गया वो ये दिया गया, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ग्लोबल टेंडर है वो 200 करोड़ तक के डिसअलाउ कर दिए। यानी अब केवल और केवल इंडियन एंटिटीज को ये जो 200 करोड़ तक के टेंडर हैं वो मिलेंगे, बाकी ग्लोबल टेंडर्स ये नहीं मिलेंगे। दूसरा जो एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया था वो ये था कि अब आपकी जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट ऑलरेडी एमएसएमई के पास थी वो अब अगेंस्ट गवर्नमेंट और आपकी सीपीएससी भी अवेलेबल होगी। ये था जो हमारे आत्मनिर्भर भारत में सर्कुलर में जो चीजें थी उसके बारे में। अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन आते हैं या जो मेरे से आज तक मतलब मुझे समझ में आए मेरे इंटरप्रिटेशन से, 2-3 क्वेश्चंस है जिसे मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी, उसके बाद आई गिव इट ओवर बैक टू राजेश जी। पहला इसमें सवाल ये आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस दिन अनाउंसमेंट आई वो ये था कि क्या मैं आज रजिस्टर कराऊं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं। इसके 2 लेग्स हैं, ना इसे मैं हाँ कह सकती ना मैं इसे ना कह सकती। ऑल्दो ना वाला पड़ला थोड़ा सा भारी है,
लेकिन फिर भी हम इसे दोनों तरह से देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पहले वाले पॉइंट की, कोलेटरल फ्री लोन की, तो उस केस में अगर आप नई एंटिटी रजिस्टर कराना चाहते हैं आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें डेडलाइन दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन है वो 29 फरवरी को जो है उसका 20% देंगे, तो यानी वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है ना कि हम अब रजिस्टर कराएं तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वो केवल और केवल डेफिनेशन में चेंज की वजह से आया है, क्योंकि बहुत सारी जो एमएसएमई थी जो पहले से एमएसएमई में फॉल नहीं करती थी और अब फॉल कर रही है, वो शायद इस वाली कैटेगरी में फॉल कर सकती है। इस पे बैंकर्स का क्या ओपिनियन होगा या सरकार इसे किस तरह से लेगी, ये अभी क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है, बिकॉज वी कैन नॉट से yes and no to it, but yes if you want to start up a new business तो इस स्कीम में एटलीस्ट अगर जो एग्जिस्टिंग हमारे बेनिफिट्स हैं उसे छोड़ दे तो आत्मनिर्भर भारत में आपके लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपकी जो एलिजिबिलिटी बैठेगी वो बैठेगी जी गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जहां तक मेरी समझ है उसके हिसाब से हर गवर्नमेंट टेंडर कहता है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का 2 साल का कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो फ्रेश वाली कहानी है कि जो नई कंपनी बना के मैं बेनिफिट इस आत्मनिर्भर भारत का या उसका ले सकते हैं या नहीं, वो तो मेरी समझ से नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग कंपनी जो डेफिनेशन की वजह से इस कैटेगरी में अब फॉल हो रही हैं, क्या बैंक लोन को उसके लिए कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मेरे हिसाब से किया जाना चाहिए। डेफिनेशन नहीं तो चेंज करने के जो मायने हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, मेरे हिसाब से किया जाना चाहिए। बाकी जो इसका गवर्नमेंट का इसका जो आउटलुक होगा या जो क्लैरिफिकेशन आएगी दैट इज येट टू कम, और आप लोग बैंकर से ज्यादा टच में होंगे तो दे विल आल्सो कम अप विद सर्टेन इंटरनल सर्कुलर काइंड ऑफ अ थिंग कि क्या अलाउ कर रहे हैं और क्या डिसअलाउ कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं आज की बात करूं तो हमें जो बेनिफिट्स है वो एग्जिस्टिंग वालों को मिलने चाहिए, इवन इफ अगर वो अब रजिस्टर कराते हैं ड्यू टू दिस चेंज डेफिनेशन, बट स्ट्रिक्ट नो टू ऑल द कंपनीज एंड एंटिटीज जो ये सोच रही हैं कि गवर्नमेंट ने पैकेज इशू किया है तो आप एमएसएमई में रजिस्टर करा लीजिए। आज की तारीख में दुनिया भर के एड्स भी आपको मिल जाएंगे और दुनिया भर के कहते हैं ना एक भेड़ चाल सी हो गई है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। दिन में 100 फोन आपके पास आ जाते होंगे कि सर कुछ दिला दोगे क्या इसमें, या मैडम आप कुछ लोन वोन इसमें दिला सकते हैं, तो हम लोग एमएसएमई में रजिस्टर करा लेते हैं या हमारी नई कंपनी बना के कर लीजिए। तो बिफोर गोइंग टू जस्ट टू रश फॉर द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार में बहुत आसान है, वो आप लोगों को पता ही है, तो उसके लिए स्ट्रेट अवे जाने से बेटर है लेट्स जस्ट एनालाइज फर्स्ट और एक बार बैंकर से भी डिस्कस करें जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उन्हें मिलेगा या नहीं। तो दिस इज माय व्यूज ऑन दिस आत्मनिर्भर योजना, जिसमें कि एमएसएमई को क्या और कितने फायदे मिले। मेरे हिसाब से लिमिटेड हैं, आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों के व्यूज इसमें एक बार हम लोग जरूर एक्सचेंज करना चाहेंगे, और इनफैक्ट कभी मौका मिलेगा तो लॉकडाउन अगर खुल जाता है तो वी विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट राजेश जी कि ये टॉपिक एक बार फेस टू फेस लिया जाए, बिकॉज इसमें क्वेरीज और कंफ्यूजन सिंपल होने के बावजूद इतनी ज्यादा है। वो कहते हैं ना जो चीज जितनी सरल होती है उतना ही मुश्किल उसे समझना होता है, बिकॉज वो देखने में तो बहुत आसान लगती है लेकिन जब आप डीपली उसे समझना चाहते हैं तो वो पल्ले नहीं पड़ती। तो नाउ ओवर टू राजेश जी, by here I'll end up my submission on this topic. Thank you, Over to you, thank sir. you, thank you, madam. Thank you very much. First for accepting our invitation at the 11th hour, and we were helpless at the time when Divesh ji was in a big dilemma. So I request you, and you accepted our invitation. And also thanks for detailing the various benefits available to MSME. Certainly there are a lot of confusion whether this benefits will be available to or not, and we are waiting for some clarification either from the government or from the bank. So thank you once again, and I assure you that, madam, I will again call you. Please don't worry. Definitely, sir. I again and again call you. Now it is Definitely. our time to listen our another speaker, CA Deepak Arya ji. Deepak, I would like to first introduce him. Just a minute. Yes. Deepak Arya ji is qualified in May 2015
and working in the capacity of associate partner in RAPG and company chartered accountant. He has handled pre-implementation support of GST and UAE VAT for the industries like manufacturing, infrastructure, construction, pharmaceuticals, trading, pure service industries, etc., and assists them in identifying the issues on which immediate action were required. He has conducted various in-house training sessions for finance and accounts team of companies and MSMEs. He also lead a team of professionals in providing end-to-end assistance in the GST implementation. He was engaged in broad range of indirect taxation matter, and there are a lot of experience he has in service tax. I am skipping his profile, and Yeah, in thank you, in thank you, Haryana. thank you, Rajesh ji. Thank you, and over to you, sir, without taking too much time. And thank you, Richa Yeah, ji. I request you please be with us, or if you, I know you have another webinar, but I again request you please be with us. Over to Deepak ji. ji, Rajesh ji. Thank you so much for your kind words, Rajesh ji, and we are sorry that the CS Divesh Goel is not with us because there was some exigency in his home. So I'm here. So please excuse me if I just move here and there because I'm carrying two equipments right now to show you the PPT as well as the presentation. Just hold for a second. I'm sharing this screen. This was very well explained by Richa on the measures taken by central government amid this COVID situation. But definitely there are many gray areas right now which were not explained uh, completely in the session which was there in. Just hold for a second. There's a problem. Yeah, Yes. I hope it is visible to all of you. Yes, yes, yes. Ji. So yes, there are the gray areas in this area, the MSME explanation or the measures which has been taken by central government. But I believe the steps which has been taken by the authorities are well on time. This was very demanding in the industry that how the MSME sector will cope up or create again the existence of its own. So there was a definitely there was a pre explain pre I can say pre the measures which has been taken by Nirmala Sitharaman ji was explained first by PM Modi, and he was too I would say focused to bring MSME sector self-reliant because they want India to be self-reliant. They don't want to be pay more dollars to outside India and create more and more equipments, testing kits of this COVID situation and PPE kits, which he has explained in his session also. I should not say session, it was address to the nation. So I'm moving towards the slides now, which were already been taken up by Richa, but I will just move on fast and take up few things which needs to be explained right now. Yeah. So first, I would tell you that this was not at all a package to bring more spending to the government, but it was loan distribution, I should say, because the 20 lakh crore of relief package, it's not a relief package, it's an economic package. The economy needs money and the government is keen to give money, but only in the shape of loan.
that we can say in agricultural sector as well, in MSME sector as well, and even in the case of I have heard in one measure they are giving 10,000 of credit to the these रेडी वालास और जो भी सड़क किनारे अपनी लगाते हैं दुकानें, उनको 10,000 रुपए का क्रेडिट स्कीम में ये फंड्स देंगे, एंड those funds will be payable definitely. So it's a loan distribution scheme. Now moving towards how this loan can be taken up by MSMEs, or who are the MSMEs. So I will take one by one. Highlights I'm not covering right now. I'm just moving towards the definition first. This definition is well explained by Richa, but I have some doubt on this definition modification, because this definition has been changed with effect from 15th May, and it was not at all explained anywhere that if the investment is more than 10 crores, let's say it's 15 crores, and the turnover of that person is 25 crores. So whether that person will be under the small category or medium category. So there are many clarifications needs to be provided by the government itself. As per the slide itself, you can just see this revised MSME classification. This is based on investment and turnover. Earlier, this was only on the basis of investment. So now, considering the turnover in the definition itself a positive sign for all the MSME sector, but this has some confusion. This really has some confusion which needs to be explained. So Rajesh ji, if it is feasible if it is comfortable for all participants, I am shifting to Hindi. Okay, so I believe there should not be any problem. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो जो भी MSME क्लासिफिकेशन रिवाइज की है इन्होंने वर्ड जो डाला है that has been included and they have not included or. So what should be the purpose? We are not very sure what should be the purpose, but yes, this has to be clarified by the government sooner, because there are very much confusion going on. So yes, there are doubts on and or, and moving on to that next slide. Global tenders we have taken up. Yes, this is the major change. The government and central PSUs, they will be settling all the MSME dues within 45 days. मैं सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला जी की, उसमें एक क्वेश्चन आया उनके सामने दैट मैडम आप एक बात बताइए, आप अभी गवर्नमेंट को कह रही हैं कि PSUs को कह रही हैं कि 45 डेज में सारा का सारा जो भी आउटस्टैंडिंग वो ड्यूज सेटल करेंगे, बट एज ऑन डेट आपके ही मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ ऑफ आउटस्टैंडिंग इज पेंडिंग इन द साइड ऑफ गवर्नमेंट फॉर MSMEs. So how this thing will be done? तो निर्मला जी ने सीधा सीधा ये जवाब दिया that this figure is not correct. They are only having 10,000 crores of outstanding to MSMEs, and they are continuously following up with the expenditure department and all the outstanding which is due for MSMEs, either with the central government or the central PSUs. They are being taken up very seriously, and they are setting it up very within this timeline. तो हम बात करें intention की, so there is an intention on the part of government to give more liquidity to in the hands of MSMEs, but there is a big thing. आज की डेट पे 2 महीने हो गए हैं, MSMEs ने कुछ I believe जो भी फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, वो सैलरीज कैसे पे करेंगे, वो अपनी फैक्ट्रीज कैसे चलाएंगे, वो रेंट कैसे पे करेंगे, वो अपनी मशीन्स रिपेयर कैसे कराएंगे, उसकी कॉस्टिंग कौन देगा. देयर आर मैनी हर्डल्स
on the side of MSMEs, और ये loans जो भी ये distribute करने वाले हैं through the banks and BFCs, तो ये loans भी इतनी easily मिलेंगे नहीं, as also indicated by Richa. Also, to my own experience, the banks are not really, I should say, ready to pay to just disperse all the loans to the MSMEs with the guarantee of government, because yes, there are some policies which needs to be come up by the bankers to bring it more lenient, and also indicated in the press conference that this whole scheme will be automatic. तो अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो देयर शुड नॉट बी एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, और अगर हम बात करें क्रेडिट गारंटी की, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपनी प्रेस रिलीज में दैट कैबिनेट हैज गिवन द परमिशन टू गिव द गारंटी बाय CGTMSE. दिस इज द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट which has been created by, which was earlier also with the government. So they are using this trust to give the guarantee to the banks so that they can just pass on all the benefits to the MSMEs. So moving ahead, there are different announcements now. Yes, this is the most important aspect जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ समझना कि MSMEs को फायदा क्या होगा. सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो कैटेगरी है ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होगी. आप लोग इसको रजिस्टर कैसे करेंगे, एक एंटिटी को, एक इंडिविजुअल को, एक कंपनी को रजिस्टर कैसे करेंगे, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. बट बिफोर दैट आई विल टेक यू टू दिस स्नैपशॉट ऑफ बेनिफिट्स which are available to the MSME sector as on today also. अगर हम बात करें कि MSME को फायदा गवर्नमेंट ने ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन दिया है, 3 लाख करोड़ का पैकेज, लोन, these all things are just due to this extraordinary situation, but government has already given many benefits to the MSME sector to bring it up and create a good healthy environment for the MSMEs to do businesses. MSME जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया की बैकबोन है, और ये ना ही सिर्फ इंडिया की, ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं काफ़ी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं बाकी गवर्नमेंट की साइड से भी, बाकी कंट्रीज के साइड से भी, दैट दे आर आल्सो डूइंग समथिंग फॉर देयर MSME सेक्टर बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. अगर हम नंबर्स की बात करें तो 30% ऑफ GDP is being contributed by MSMEs and almost 40% of employment is being generated by MSMEs. तो अब आप समझ लीजिए कि अगर 2 महीने से MSME सेक्टर ने कुछ काम नहीं किया होगा तो एम्प्लॉयमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा और GDP पे कितना फर्क पड़ने वाला है. जी, तो अभी बेनिफिट्स की बात करते हैं. तो बेनिफिट्स में सबसे पहला जो लोन प्रोवाइड हो रहा है अभी 3 लाख करोड़ का, ये पहले भी स्कीम्स आई हुई हैं. सिडबी की एक, अगर आप वेबसाइट जानना चाहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा. सिडबी ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है दैट दे आर इशूइंग द लोन विद इन 1 hour ऑन द बेसिस ऑफ credentials, on the basis of credit lines of an MSME. So there is a scheme which has been governed by Government of India at present also. So credit guarantee scheme, yes, it is being provided to the MSMEs as of now, yes, and before this COVID situation also, yes. Subsidy on patent registration, yes, and subsidy on patent and trademark registration, yes, they are providing the subsidies. So it will be beneficial for new startups and MSME sector who are initiating their businesses or in the initial stage to get the registration. The fees is quite definitely it's a hindrance for them. So they are using this tool to get registered and
get the subsidy for the patent and trademark. Interest rate exemption is being provided to MSMEs. Banks have different consideration for the MSME sector, so they provide generally 1 to 2% concession for the MSME sector. Then next is industrial promotion subsidy is eligibility. So there are many industrial areas in the respective states. So whenever an MSME is going to put a plant or start a factory in that industrial area, so this industrial agencies or bodies provide the subsidies to them to make them promote. The next is protection against payments. This is the most important, I should say, benefit to an MSME sector, because as per the MSME Act, any person who is dealing with MSME is required to make the payment to MSME within 45 days of acceptance of invoice. So yes, there are many measures for MSME. Just like in Companies Act, they are having a form which needs to be filed by every company who are dealing with MSMEs, and they are supposed to declare that how much of the amount and who are the vendors who are registered as MSMEs and outstanding more than 45 days. So there are protection being provided to MSMEs, and even though this protection is provided, many companies and in many cases MSMEs face challenge. So in that case, they were having the IBC tool for not getting the payment and file them IBC case or giving them notices, etc., etc. So there were measures earlier also before this COVID situation. So I believe whoever wants to get registered as MSME, you have to and you should give him this advice that you are protected against your outstanding payments. I have been facing many cases with our clients who are getting notices from the MSME sector, and we as a client, definitely we advise to the client that you have to disperse all the outstanding at the earliest, otherwise there are challenges, there are litigation on this part. So to avoid litigation, counterpart has to make the payment to MSME and MSME get benefited. So you have to advise your clients also, to all the MSME clients or the clients who are having turnover below 100 crores or investment below 20 crores, to get registered as MSME as soon as possible to get this benefit at least. Then there is a concession on electricity bill. Definitely when you are having a factory or you are having some plant and you get heavy electricity bill on your commercial meter, you are getting concession from the electricity bills and you are benefited financially. So MSME has this benefit also. Then coming to ISO certification, yes, these are also being reimbursed up to an extent and benefit from government tenders. Government has recently also announced in their package that whenever there is a tender or an order is coming up to the value of 200 crores, they are not going to go out of India to get this tender done. They are going to get the tenders filed by the local vendors, local suppliers, to enhance more business, to give more business to the local suppliers and enhance the enhance this idea of the government of PM Modi to create self-reliant Bharat. So government is also considering this, and they are also following up with the policies and making the policies more stronger and more healthier for the MSME sector. And this is not the end. This MSME sector is going to get more benefits from the government, because they are going to pick all the MSMEs and make them self-reliant and make them more healthy for the economy itself. So
this was about the benefits. And now coming to few questions which I have noted. There was a question on चैट बॉक्स में है सारे क्वेश्चन सर, यू टेक वन बाय वन। जी सर जी, स्टार्टिंग से ले Just- लीजिएगा। पहला है, मैं पढ़ देता हूँ। कंपनी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट 45 करोड़, टर्नओवर जी। 50 करोड़। जी विल इट बी कंसीडर्ड एज मीडियम इंडस्ट्री अंडर न्यू डेफिनेशन? सर यही मेरा भी कंसर्न है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि गवर्नमेंट ने डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्प दी है, और इस क्रिस्प डेफिनेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, जो कि चैलेंजेस अभी क्लैरिफाई करने हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी देखा गया है, काफ़ी पॉलिसीज जो बनती हैं गवर्नमेंट की। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था 269 यू पे भी एक क्लैरिफिकेशन आया है, जिसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी है टू बी सप्लायर, टू बी सप्लायर्स, जो भी B2B सप्लाई कर रहे हैं, उनको जो भी पेमेंट मेथड्स थे यूपीआई के या फिर मास्टर कार्ड के, वो सब अवेलेबल ज़रूरी नहीं है, वो सब ज़रूरी नहीं है कि वो रहें। तो देर आर सम पॉलिसी ग्लिच आई शुड से, जो कि होने चाहिए पहले ही कंसिडर, बट वो नहीं होते। इसी तरीके से ये भी एक पॉइंट है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में माइक्रो में फॉल कर रहे हैं और टर्नओवर में मीडियम में फॉल कर रहे हैं, तो हम कहाँ किस कैटेगरी में जाएंगे? तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन रिसेंटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। एक ये, और सेकंड एंड और का जो कंफ्यूजन है, दिस हैज़ टू बी क्लैरिफाइड, अदरवाइज बहुत बिजनेसेस जो हैं वो कंफ्यूज हैं, और वो रजिस्ट्रेशन कराएं कि ना कराएं इसके लिए डाउटफुल हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन सर। we as a professional advise the government, and we all together should advise the government to clarify this thing as soon as possible. नेक्स्ट क्वेश्चन, whether trading concern can be treated as service enterprises for this purpose? जी सर, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, और मैं बताऊं तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारी एक ट्रेडिंग कंसर्न में हमें रजिस्ट्रेशन लेना था, दैट पार्टी वाज forcing us to get it registered. So what is the way out? So apparently अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा ऑनलाइन जो हम फिल करेंगे। So there is no option to pick trading as a category. आपको या तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा या सर्विसेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं या प्राइमरी आप सर्विसेज हो सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए देयर इज नो ऑप्शन। बट यस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, so you are doing trading of goods, and if you are having some income from services, for example commission income, if you are having some rental income, then yes, you can register as a service provider. Sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जी ये सर। वरुण जी का है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? सेकंड, व्हाट विल बी इन्वेस्टमेंट इन सर्विस इंडस्ट्री? एंड थर्ड, इनका एक ही पार्ट का है, will a company or LLP into business of CHA business or जी trading of goods will be covered under MSME? जी, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूँ। पहला है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत क्लियर कट इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन से बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शैल बी कंसीडर्ड ओनली। तो अगर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सपोज लैंड में है, शेयर्स में है, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगी। ओनली प्लांट एंड मशीनरी शैल बी कंसीडर्ड। इवन दो प्लांट एंड मशीनरी में भी मैं अगर आपको बताऊं, तो उसमें भी 2-3 चीज़ें जो इन्होंने क्लेरिफाई की हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट कवर नहीं होगा। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग ये थोड़ा क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग लैपटॉप्स and desktops, these all will be covered for service industry, because these are the equipments basis which the services are being provided. जी, और second question पे आता हूँ, तो this question is regarding, just hold for a second, what will be the investment in service industry? So I explained service industry में you have major investment in your fixed assets, and you have your own manpower. So investment in the area of laptops, equipments,
AC, these all will be considered as plant and machinery, to my understanding. So there are views on this part that if it is an office equipment, these are not installed in the factories, so they are not supposed to be a plant and machinery. These are the office equipment. But to my understanding, if these are not being placed on your premise, then you are not you will not be able to provide the services itself. So सर सर्विस इंडस्ट्री के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट will a company or LLP into business or CHA business or trading of goods will be covered under MSME? सर कंपनी और LLP यस वो रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस ऑफ CHA बिजनेस में है तो CHA जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से अगर वो कमीशन चार्ज कर रहा है, सो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज and they are eligible to get registered, and if they are providing trading of goods, then they will not be able to get registered. जी सर, आगे क्वेश्चन है सौरभ का. हाँ ले लो सर, आप ले लो. जी, is trading concern covered under MSME? सर ये मैंने जवाब आपको चैट बॉक्स में ही दे दिया था कि वो ट्रेडिंग कंसर्न MSME में रजिस्टर नहीं हो सकते. विजय अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इफ एंटिटी रजिस्टर्ड एज MSME बट इट्स इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इज एक्सीडिंग द लिमिट, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ benefit of collateral free increase in loan as announced, and what would be the status of MSME? Okay, so सर आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है और मैं क्लियरली बताऊं तो इसका जवाब आज के डेट पे नहीं है. अगर मैं आपको वापस लेके चलूं, हालांकि Richa has taken up this point, but I am also going to take up this to give you more clarity. This collateral free automatic loans, they are going to cover only those person whose outstanding credit as on 29th Feb 2020 is up to is 20%, up to 20%. ये लोग उनका क्रेडिट जो लाइन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, उसको प्रोवाइड करेंगे. बट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट? दे हैव नॉट डिफाइंड इट. So I believe they are supposed to define this thing, that what is the meaning of outstanding credit. Even if I show you this press release, in this press release also, this press release coming out from the Union Cabinet, which was chaired by PM Modi. So they have approved this scheme, and they have not yet clarified in this also that what is the definition and what is the meaning of outstanding credit. Yeah. Here also they have given the silent features of the scheme include all MSME borrower accounts with outstanding credit. So what is the meaning of outstanding credit? I will give you one instance. This could be the case when an MSME borrower is also having an outstanding loan of 10 crore rupees, and that person is having the outstanding credit of 10 crore rupees. So they will be giving them 20% of 10 crores, 2 crores. This is first school of thought. And second is, this outstanding credit may pertain to the books balance, that whatever the liabilities you are having in your hands as on 29th Feb, so that you can clear up all your outstandings with this 20% funding. So that's my view. The government have to explain this and have to clarify this, that what is the meaning of outstanding credit here. Next question, sir. जी, so where were we? Next question, sir, किसका था? मंजू मैं जी. पढ़ दूं, चलो. जी. In case we are not MSME, but due to change in definition covered within the definition as MSME, whether registration is required now? See, Manju, if you want to get registered and you are coming into the category 15th May के बाद, you have this turnover based and investment based criteria.
So if you are fulfilling that, you can get registered. And if you are already registered in MSME, then you're not going to do anything. Yeah. Next, sir. Ashok Kumar ji, whether trading units will be considered for MSME? No. Is MSME registration is must? It's an optional. Definitely, it's an optional. Arush, if an MSME, if a business wants to get registered in MSME, so it can. If you don't want to get registered, it's an optional. Definitely, you won't be getting the registration automatically from the government. But you are getting the benefit, so you should advise your clients who are coming into the criteria to get registered in it, at least to get the benefit of delayed payment within 45 days. As per old definition, we fall in medium enterprise. Sir, ये थोड़ी clarity अभी ज़रूरी है. We are not getting an update from the government कि क्या रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था. नाउ ये भी हो गया. अगेन रिपीट है ये. If we take registration now under MSME and we don't have any loan from bank, but now can we take collateral free loan or not? सर ये इसका जवाब ऋचा ने भी दिया था और मैं भी इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो बात है कवरेज की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इज अलाउड अप टू क्रेडिट एज ऑन 29 Feb. तो जब तक ये 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, तब तक इस पे कुछ भी कहना मुश्किल. रजिस्ट्रेशन ले लीजिए एमएसएमई में, तो भी हो सकता है बैंक आपको डिनाई कर दे दैट यू आर नॉट कमिंग इनटू द स्कीम, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट. बट यस, you are eligible for the earlier schemes which are there definitely from the credit guarantee schemes. So bank, if you approach bank to get more clarity, they are going to assist you on this, and they are definitely going to help you to get the loans. I'm not sure practically if banks are truly in a position to give loans in the current scenario, but yes, the banks have to help you on that part. But in this collateral free automatic loan, I believe there has to be a clarity coming up from the department, from the MSME or government of India, so that you can get the clarity more on this. Till then, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि आप इसको आप collateral में benefit ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. जी. Next question: if we are a cab driver provider, then will be covered under investment in equipment? Sir, vehicles को deny किया है इन्होंने, that vehicles will not be covered under the definition of plant and machinery. So अगर चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आया, so it's a healthy position for you. If it is not coming in the definition of investment, so if you're not your investment is not going up, so you are eligible to get registered under MSME and get the benefit. So definitely it's in healthy position. Acha, next question: if a company have major trading but less in service, whether registration can be obtained? Sir, yes, registration लिया जा सकता है. आप अपनी सर्विस कैटेगरी को डिफाइन कीजिए, प्राइमरी कैटेगरी में डालिए एंड गेट द रजिस्ट्रेशन. Sooner or later, department will clarify on this part also, because this is the major confusion which is coming up in the industry. कि अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं अगर रेंटिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो क्या मैं एमएसएमई में रजिस्टर हो सकता हूँ? तो yes, आप registration लीजिए. Later on, department will come with the clarification and you can deal accordingly. Next question: entity providing trading and service, then 45 days payment will be applicable for both outstanding or only for service outstanding? Right. So this was expected, but I believe that will be allowed only on the service category, not on the trading of goods, because you are not registered in the category of trading of goods, and you are not eligible to get registered in trading of goods as well. So I believe it will be applicable only on the service category outstandings.
Is mobile phones and vehicle given to employee in service industry will be considered as investment? सर Vehicle तो होगा ही अभी नहीं। नहीं सर, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि वो कैटेगराइज नहीं होगा. प्लांट एंड मशीनरी मींस प्लांट एंड मशीनरी which do not include vehicles and these equipments. ये 20% of fund based only or fund based and non fund based. Which one? ये नवीन गुप्ता की बात कर रहे हैं सर आप? जी 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 जी. नवीन जी कह रहे हैं 20% of fund based only or fund based or and non fund based. Sir, I'm not getting this question. So you क्वेश्चन can पूरा नहीं है. put it again. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर. व्हाट आर स्ट्रेस्ड एमएसएमई? सर एक्सप्लेन करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट यस आप इंडिकेशन लगा सकते हैं. दे हैव इंक्लूडेड एनपीएज एज वेल. सो इफ अ बैंक इज हैविंग एन एनपीए and they are not able to pay off their amount, so they will be considered as stressed MSME as well. So let me take you just on the press release wherein they have defined the MSME borrower. They हाउ have टू given this. रजिस्टर? हाँ, just a second sir, राजेश जी एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं. यहाँ पे साइलेंट फीचर सर प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, जिसमें इन्होंने बोला है दैट ऑल द एमएसएमई बोरोवर्स अकाउंट्स विद आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ अप टू 25 crore as on 29th Feb which were less than or equal to 60 days past due as on that date. So अगर कोई एमएसएमई है, उसने आउटस्टैंडिंग उसका कोई लोन चल रहा है और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट उसका 60 डेज से ज्यादा है which is unpaid, तो उसको भी ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे. बट स्ट्रेस्ड के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से. सो लेट्स एक्सपेक्ट ए मोर क्लैरिफिकेशन. जी राजेश जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो सर, पढ़ लो. मैं पढ़ूं? जी सर मैं पढ़ रहा हूँ. मैं चैट से बाहर आ गया था, मैं पढ़ देता हूँ. नहीं कोई बात नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ. हाउ टू रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, प्रवीण जी अभी बताते हैं. प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन फॉर बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स. सर मैं शेयर कर दूंगा. वेदर सब्सिडरी, और ये मुझे प्राइवेट आया है, वेदर सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इन साइबर सिक्योरिटी इज एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज एमएसएमई. सर यस, सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी भी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं. अगर आप 100% एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू आर eligible to get registered in under MSME. नेक्स्ट जी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं. whether 3 lakh crore is for all business including MSME और फॉर only for MSME. सर नहीं, ओनली फॉर MSME के लिए है. और मैं एक बात आपको बताऊं तो 3 लाख करोड़ आपका अमाउंट लग रहा है, बट आज तक जो मैंने सिनेरियो एक चेक किया था तो विद इन लास्ट 10 years ओनली 1.5 लाख करोड़ ऑफ लोन हैज बीन गिवन टू MSME. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 लाख करोड़ के लिए जो इन्होंने टाइम लिमिट दी है 31 अक्टूबर तक, वो मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से बैंक्स काम करने वाले हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करने वाली है, किस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बैठेगा बाय द गवर्नमेंट ट्रस्ट टू गिव द गारंटीज टू द बैंक्स, और बैंक्स किस तरीके से पॉलिसीज लेकर आते हैं और 31 अक्टूबर तक कर लेते हैं, जबकि आज में एंड में हम घर पे बैठे हैं. सो देयर आर वेरी लेस टाइम टू गिव दिस मच ऑफ लोन टू द MSME सेक्टर. अरे लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू रजिस्टर इन MSME, बस लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए. ठीक है, हाउ टू रजिस्टर्ड इन MSME, इसको मैं आपको सर प्रोसेस डिफाइन कर देता हूँ. मैं इसके लिए पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, लाइव डेमो दे देता हूँ, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. जी सर, जी सर. जी आई बिलीव स्क्रीन सबको दिख रही है, नहीं दिख रही? एक सेकेंड सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जरा. हाँ आ रही है सर स्क्रीन. आप नहीं सर ये जी अब दिख रही है? जी सर, गूगल. हाँ जी. तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं.
हमारा एक क्लाइंट है, उसने जेसी ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट किया, सो वी टेकन अप द मैटर एंड considering this an assignment as a small assignment, so we have given this assignment to our trainee. So what that trainee has done, it's not his mistake, so he just typed MSME registration. So just he picked this first link and fill the form here, attach the files and validate and pay. That trainee had made the payment of 1850 rupees. So I'm not sure everybody is aware of this or not, but this MSME registration is totally free of cost from the government of India. Earlier there were some fees which were levied, but this is long back story. But right now जो भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं MSME का, वो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट. तो सही लिंक पे जाने का मैं आपको बता देता हूँ जरिया तरीका क्या होता है. तरीका ये है सर कि आप यहाँ पे MSME रजिस्ट्रेशन मत डालिए, आप उद्योग आधार डालिए. मैं आप सबको बता दूं, उद्योग आधार जो वर्ड है, दिस हैज बीन रिप्लेस्ड. MSME रजिस्ट्रेशन के अवर्ज में इस उद्योग आधार वर्ड को लाया गया है. इसका बेसिस क्या है, इसकी वजह क्या है? सिंपल वजह है सर इसकी कि कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सभी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं MSME में विद द आधार ID of the director, of the partner, designated director और the proprietor. तो आधार रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको सिर्फ आधार ID की जरूरत है, जो आपके डायरेक्टर की होगी, आपके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की होगी, LLP के केस में आपके पार्टनर की होगी, और आप प्रोप्राइटर के केस में वो खुद की अपनी ID यूज करेंगे टू गेट इट रजिस्टर्ड. तो उद्योग आधार सर आपने डाला और यहाँ पे उद्योग आधार.gov.in ये वेबसाइट को आप ओपन करेंगे. तो जब आप ओपन करेंगे, यू विल गेट दिस वेबसाइट, नेशनल पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME. And here you will be able to see the number of registrations which has been taken up by various MSMEs. तो सर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये दिवेश गोयल जी ने भी पिक किया था, ये मुझे भी नहीं पता था, सो ही गिवन मी दिस अंडरस्टैंडिंग कि MSME रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता. अगर वो ये कह के चार्ज करता है फीस के मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है वो चार्जेस लेती है, और किसी भी कंसल्टेंट ने ये फीस चार्ज की इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट चार्जेस, तो उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है. तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें और ऐसे लोगों को थोड़ा एडवाइस करें. आजकल जो कि हम देख रहे हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन दिलवाने के लिए आजकल लाइन लगी हुई है, तो उन लोगों को ये चीज़ समझनी होगी दैट दे आर नॉट सपोज टू गेट एनी अमाउंट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट चार्जेस फ्रॉम द क्लाइंट्स. Yes, they can claim consultancy charges, their own consultancy charges, but Ministry of MSME कोई charges नहीं लगाता, तो इसीलिए उनको अवेयर कराना जरूरी है. जी आगे चलते हैं. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधार नंबर चाहिए. रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है किसी भी एंटिटी का, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार नंबर चाहिए. आधार नंबर किसका चाहिए? आधार नंबर आपको पार्टनर का चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपको डायरेक्टर का चाहिए इन केस ऑफ कंपनीज, प्रोप्राइटर का चाहिए इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और LLP के केस में जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं उनका. विदाउट आधार, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, विदाउट आधार यू कैन नॉट रजिस्टर एन MSME. तो आधार नंबर सबसे पहले लीजिए, अपनी चेकलिस्ट में इसको जरूर डालिए दैट यू आर सपोज टू गेट द आधार नंबर फ्रॉम द कंपनीज और द क्लाइंट.
जी, तो यहाँ पे आधार नंबर आएगा एंड हेयर यू विल पुट द नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर. सो नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में आप वही नेम डालेंगे जो आधार नंबर पे अपडेटेड है, अदरवाइज इट विल नॉट जनरेट एन OTP. So this has to be noted that before proceeding with the registration form, you are supposed to put Aadhaar number and the name of the person who is having that ID. Then only it will generate the OTP. And one more thing, you have to make sure that the person who is having the Aadhaar ID is having the mobile number linked with the Aadhaar. कई दफा क्या होता है कि हम आधार नंबर डाल देते हैं, OTP नहीं आता because that person has not updated the mobile number or not assigned the mobile number on the UIDA website. तो अगर आपको इनिशिएट करना है किसी का भी रजिस्ट्रेशन, तो आप आधार नंबर लीजिए और आप आधार नंबर के साथ OTP लेने के लिए उनसे ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है आधार में कि नहीं. तो सर यहाँ पे मुझे अपना ही पर्सनल डालना पड़ेगा टू प्रोसीड विद फॉर्म, अदरवाइज इट विल नॉट टेक. दीपक जी बी फास्ट, दीपक जी थोड़ा जी सा सर, जी फास्ट कीजिएगा. जी सर, मैं बस आधार नंबर ढूंढ लूँ अपना. ये जनरल थिंग्स हैं, OTP वगैरह ना, इनको बताने की सब जरूरत नहीं है और सारे जी जी, लोग जानते हैं हमारे. चलिए ठीक है सर, फिर हाँ, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ. हाँ बी फास्ट सर, बी फास्ट. जी आप प्रोसीजर बता दीजिएगा ओनली. हाँ जी, मैं फॉर्म ओपन करके आपको प्रोसीजर बता देता हूँ जरूर. हाँ, डाटा भरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उनको बता दीजिएगा सबको. जी, जैसे ही आप OTP डालेंगे, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. बहुत सिंपल फॉर्म है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं मांगा गया है, सब्जेक्ट टू सम 1 or 2 थिंग्स. पहले 2 पॉइंट हमें समझ में आ गए. थर्ड पॉइंट, कैटेगरी पूछी हुई है आपकी, जनरल, SC ST whatever. देन जेंडर, पुट द जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप, यस और नो. नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम डालेंगे. टाइप ऑफ द एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, ये आप अपना कैटेगरी डाल देंगे कि आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक्सेट्रा. देन पुट द पैन, यहाँ पे पैन आप डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन का. इसके बाद एड्रेस, जो भी आपका सिंगल एड्रेस है. कई दफ़ा क्या होता है, प्लांट हमारे एक से ज़्यादा लोकेशंस पे हैं, तो आप ऐड करके वो प्लांट के एड्रेसेस को भी ऐड करेंगे. ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, यहाँ वो एड्रेस डालेंगे. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उस पर्सन का जिससे कम्युनिकेशन होनी है. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालना होगा, विच इज़ एज पर कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता देता है आपको. जी, यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली रजिस्टर्ड थे तो आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि आप कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड थे. बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेफिनेटली बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी. अब यहाँ आते हैं सर, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट. तो 14th पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर अस, जहाँ पे हमें ये बोला गया है कि आप सिलेक्ट कीजिए बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. तो देयर इज नो ऑप्शन टू सिलेक्ट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. सो if the question asked by any person whether trading of goods is eligible to get registered as MSME, so this answers the question that it's not. So यहाँ पे let's suppose I select services, I have to put the NIC. Yeah, so for NIC I need to search. Let's suppose I'm searching here renting, so it will ask for renting of motor vehicle, renting of sports goods, videotapes, etc. So you can select from here with the NIC code that which code is more relevant to you, and you can just select manufacturing or services. With this you will be able to get the activities added here, and you can just update it and move further for
the persons employed. The number of persons employed, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कितने पर्सन आपके इन हाउस रजिस्टर्ड है, इन हाउस एम्प्लॉयड है. कई दफा क्या होता है हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के थ्रू काम करते हैं, सो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज विल नॉट कम इनटू दिस कैटेगरी. So that's why we have to put here only the employees who are in the employment with the company or the entity. Now we will put here the investment amount. So plant and machinery, plant and equipment, we have to put it here. Plant and machinery in case of manufacturing sector, and plant and equipment in case of services sector, you have to put the amount in lakhs. This calculation is also important. This I'm not taking up here because of short of time, but calculation हमें बहुत carefully करनी होती है investment की, that which one is coming into the category or not. You will select the district here, basis on the address, it will come in the drop down, and then you'll submit. After submit, you'll get an OTP. You will put the OTP here, it will proceed and provide you the registration certificate immediately. It will not take up much time, but yes, these days there are some issues coming with the website because maximum of the person are reaching to the website, but as I experienced, it will not take much time if you use or if you work within the non-rest time. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रात को 9 बजे के बाद ट्राई कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में 8 बजे ट्राई कर सकते हैं, 9 बजे ट्राई कर सकते हैं. सो यू विल नॉट टेक इट विल नॉट टेक मच टाइम, बट हाँ दिन भर में काफ़ी लोग इस वेबसाइट पे होते हैं, तो ड्यू टू दिस लोड इट गेट्स हैंग्ड और सर्वर डोंट रिस्पॉन्ड. जी, तो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे और ज़्यादा वक्त नहीं लगता. सो इट्स ए सिंपल फॉर्म, वेरी सिंपल फॉर्म, everybody can fill, and even this website also, this ministry also recommends that all the business person should get them registered from themselves. They should not hire any representative to file this. That's why they have made this form so easier. ठीक है सर. जी राजेश जी, that's all from my side for the registration part. Thank you once again. And over Thank you so much, sir, for taking me. Over to our Guruji Sunil Damija ji for vote of thanks. Damija ji, I think is there or not? Thank you once again, Deepak ji. First of all, to accept our invitation at the very last 11th hour, and you very well deliberate on the subject and made us aware with the new things, new benefits, and certainly there are a lot of things which has to be cleared by through circular or anything by the government. And you also detail a very in a good way the process of registration. Sometimes we visited a wrong side and pay the hefty amount which is unethical. So please, I request all the members who is listening, go to the correct site, Udyog Aadhaar, and there is no need to pay any fee. This is a free registration. With this, thank you very much, Deepak ji, once again, and thank you so all. much, sir. Thank you so much. Thanks to all.